हेलो। स्वागत है एक और नए वीडियो में जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अच्छा, अगर हम बात करें इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, सो वी नो फ्रॉम द जूनियर क्लासेस दैट हीट electricity has different effects. Like one of them is the chemical effect of electric current. अनदर वन इज द मैग्नेटिक इफेक्ट, जो हम शायद चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर 3 या चैप्टर 4 है, आई एम नॉट श्योर। दिस क्लास ओनली वी विल बी रीडिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट हियर। लेट्स फोकस प्रिसाइजली ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम जो चीजें देखने वाले हैं, वी आर गोना सी द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली दे आस्क द statement or the proof of the joule. They just ask, define or explain the Joule's law of heating. Okay. Now, power and energy, we will try to calculate the expression for of H, which is I square RT. पावर का कैलकुलेशन एंड उसका थ्योरी वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट लेक्चर। वी विल बी सीइंग द applications of the heating effect of electric current, and we'll talk about the thermal overload and how to protect it. These things we're gonna see in today's lecture. Okay, now why the heating effect creates, I guess we discussed a little bit about that in the very starting of the lectures, where I told, see, if you remember, let's say this is my wire, electric wire. Okay, so electrons are flowing inside this one. Electrons, these are the electrons are flowing inside the wire. Now, because of this flow, because of this flow, they are feeling a resistance. Okay, सारी चीजें बातें हो चुकी है। resistance क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, we discussed already. Resistance, why resistance? Because they collide with each other. They collide with the impurities. They collide with the other positive ions. They collide with themselves. Because of that collision, they generate a heat. Okay, now you try to relate one thing, कि if collision is more, then resistance is more, and if resistance is more, then heat is more, right? So for to produce more heat from a wire, we need to have a wire which should have high resistance value. Well, we will हम इस चीज को derive भी करने वाले हैं, no problem in that. Okay, अच्छा, this is the reason, जैसे कि in your home appliances like the electric iron हो गया, and there's a lot of things which work on the heating effect of electric current. Okay, acha, how this heat is being produced because of the collision, you can understand if you rub your hands. Okay, you can feel after some time, you will feel that the your hands become hot. Okay, now the reason is because when you rub your hands, the particles, okay, the molecules get rubbed with each other, and the heat is produced. The same way heat is being produced in the wire also when the electrons collide with each other and with the other impurities present in it. Okay, so this is how the heat is being produced. Now let us try to derive the expression. Okay, acha, if someone asks what do you mean by heating effect of electric current, we have to write what is the mean, what do you mean by heating effect of electric current. Then you will simply write down the effect of electric current due to which heat is produced in a wire. लिख दूं मैं? लिख देता हूं। The effect due to which heat is produced. अच्छा, effect of what? Effect of electric current, right? ये important. Electric current due to which heat is produced in a wire, okay, is called heating effect. Heating effect. अच्छा, ये होगा कब? When you supply the electric current. Supply the electric current. When you supply the electric current, तो उसमें heating effect देखने को मिलेगा. This is only called as the heating effect of electric current. Clear है? Clear है? अच्छा, this only इसको जो है जूल्स, ओके, या फिर
जूल हीटिंग भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं जूल, ये नाम इंपॉर्टेंट क्यों है देखने वाले, क्योंकि दिस वाज द पर्सन हु डिराइव द एक्सप्रेशन, इसने ये एक्सप्रेशन दिया था H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जहाँ पे I जो हो गया अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, R इज द रेजिस्टेंस का वैल्यू एंड T इज द टाइम टेकन इन सेकेंड, हाउ मच टाइम इट टेक्स। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, नाउ लेट अस टेक कि एक इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर, some I amount of electric current is going, okay, and the resistance of that wire is R, okay, and the potential difference V is applied across that wire. Clear? V is applied across that wire. So what is the V? V, potential difference, remember total amount of work done per unit charge. Let's say it is equation 1. Okay, so can I say W equals to V Q? Okay, acha, what is the value of Q? What is the value of Q from this electric current? I is equals to Q by T. Remember, I is equals to Q by T. So Q is equals to, from here I can write Q is equals to I T. तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो W कितना हो जाएगा, V Q is equals to I T. ठीक है। अच्छा, from Ohm's law, V is equals to IR, ठीक है, V is equals to IR. So let's put this value here. तो हमारा क्या आ गया, वर्क कितना आ गया, आई आर इंटू आई टी, मल्टीप्लाई कर देंगे, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आ गया एक्सप्रेशन। और दिस वर्क डन, जो भी वर्क डन ये हो रहा है, दिस इज ओनली कन्वर्टिंग इनटू हीट एनर्जी। ओके, सो इन शॉर्ट और इन समरी आई कैन राइट डाउन एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। फिर से देख लो क्या किया, लेट से एक वायर है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। लेट्स से द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज आई flowing through the wire of resistance R, and the voltage applied across that wire is V. Now we know that V is equals to W by Q. This is one thing that we know. Also, so from here what I can write, W equals to V into Q. So W equals to V and Q I can write it as IT from here. See here, I is equals to Q by T, so Q is equals to IT. I put the value of here. Also from Ohm's law I know that V is equals to IR. So put that value here. I got IR into IT, and from here I got I square RT. Acha, this same amount of work is being converted into heat energy. That's why we get an expression of heat, that is I square RT. This only called as the Joule's law of heating. This is also called as the Joule's law of heating. इसी को Joule's law of heating बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, इजी है, बहुत इजी है फाइंड करना, ये बस याद रहने का। बाकी चेंज दिस वन एंड यू गेट योर एक्सप्रेशन। V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए किया। V इज इक्वल टू आई आर, Q इज इक्वल टू आई टी, आई आर इंटू आई टी इज आई स्क्वायर आर टी, बस आ गया हीट का एक्सप्रेशन। कभी कभी 2-3 नंबर में पूछ लेते हैं, स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट एक्सप्रेशन याद रहना जरूरी है। अच्छा, इस पे H क्या हो गया, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, I क्या हो गया, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, R इज द रेजिस्टेंस इन ओम, इलेक्ट्रिक करंट किस में डालेंगे, एम्पियर में, और टाइम कितने में, किस में डालेंगे, सेकेंड। और जो हमारा हीट का वैल्यू निकल के आएगा, दैट विल आई विल गेट इन जे, जूल, वी मेजर इन जूल। क्लियर है? ओके, लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्या क्या वैल्यूज दिया है, यू ट्राई बाय योरसेल्फ, पहली बार तो ट्राई कर लो, देन आई एम स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्ट करें, पॉज कर लो, ट्राई करो, देन आई एम स्टार्टिंग। देखो क्या क्या वैल्यूज अपने पास दिए हुए हैं। वी आर गिवन विद द वैल्यू ऑफ R व्हिच इज 10 ओम, ठीक है, कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। V का वैल्यू दिया हुआ है व्हिच इज 12 वोल्ट, एंड टाइम दिया हुआ व्हिच इज 5 मिनट्स। अच्छा, मैं एक चीज बताते चलूं, सी, जो हीट का हमारे पास फॉर्मूला आया, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अच्छा, वो हीट का वैल्यू आया कहां से, V इंटू क्यू, यहां से आया। अच्छा, इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ यू चेंज जस्ट V, ओके, सो V इक्वल टू आई आर इंटू क्यू, और इफ आई चेंज Q, देन आई कैन राइट V इंटू
IT. This is I can write, or you can do further, like if you remember, just remember this one, or if you remember just this one, okay, further there will be different values. ऐसा नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे कि इस वाले में देखो आर है, वी और टी है, आर वी और टी, ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं कि डायरेक्टली तुम एच निकालो, तो कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला में लगा दो, ये वाला यूज कर ले, क्योंकि बेसिक यहाँ से सारी चीजें स्टार्ट हुई। तो एच इज इक्वल टू वी टाइम्स क्यू। ठीक है, अभी वी तो है अपने पास, क्यू नहीं है। ठीक है, अच्छा क्यू को क्या लिख सकते हैं, v इंटू क्यू को लिख सकते हैं क्या, i इंटू टी। अभी देखो टी आ गया अपने पास और v भी है, बट i नहीं है। अच्छा i को क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ v बाय आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से v इंटू आई को क्या लिख दिया मैंने, v बाय आर इंटू टाइम। अभी देखो सारा चीजें v r और t के टर्म में आ गया। देखो मैंने आई जस्ट क्रिएटेड अ डिफरेंट एक्सप्रेशन, v स्क्वायर t बाय आर। ठीक है, यहाँ से h का एक्सप्रेशन आ जाएगा। पुट कर दो, वैल्यूज पुट कर दो। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, देखो फिर से कर दे रहा हूं। देख देख व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आया ना, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो डायरेक्टली हर बार जो है यू विल गेट आई आर एंड टी, यू पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ हीट। नहीं, जरूरी नहीं है, अलग टर्म्स में दिया रह सकता है, कि जैसे कि इस क्वेश्चन में है कि आर दिया हुआ है, वी दिया हुआ है और टी दिया हुआ है। ठीक है, बट आर वी और टी के टर्म में ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं है सच दैट आई कैन फाइंड द हीट का वैल्यू डायरेक्टली। अच्छा, इफ यू वांट आई कैन डिराइव, यहाँ पे 5-6 और मतलब टोटल 6-7 फॉर्मूले हो जाएंगे जस्ट टू फाइंड द हीट, बट दैट इज अननेसेसरी। इफ यू रिमेंबर द अर्लियर फॉर्मूलाज, जैसे कि करंट का I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये सारे ओम्स लॉ का V इज इक्वल टू आई आर, ये सारी चीजें अगर याद है सो आई कैन डू इट डायरेक्टली। अच्छा, एक और Q इज इक्वल टू एन। दिस 3-4 फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन जस्ट इंटरचेंज। ठीक है, जस्ट देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, लेट मी टेक दिस वन। ठीक है, h इज इक्वल टू वी बाई क्यू मैं लेता हूँ, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर। रिमेंबर v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू था, so w इज इक्वल टू वी क्यू एंड दिस w ओनली कन्वर्टिंग टू हीट। सो h इज इक्वल टू v इंटू क्यू वाला फॉर्मूला ले रहा हूँ। अभी देखो v अपने पास है बट q नहीं है, तो q को चेंज कर देते हैं। q को हम क्या लिख सकते हैं, q को अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रिक करंट वाला फॉर्मूला, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, सो q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, अभी देखो अपने पास t है। अच्छा, ये पहले मैं क्लियर कर दूं, टाइम हमारा 5 मिनट, मतलब कि कितना सेकंड हो गया, 300 सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा अभी अपने पास v है, ठीक है, और टाइम है बट i नहीं है, सो i को कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, v इज इक्वल टू आई आर, सो i इज इक्वल टू v बाय आर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं, तो i इज इक्वल टू v बाय आर। सो यहाँ से v इंटू आई का वैल्यू v बाय आर इंटू टाइम जो है t। अभी देखो सारा चीज है अपने पास, तो देखो एक नया एक्सप्रेशन आ गया ना, बट इसको याद नहीं करने का। ठीक है, वहीं पे जो फॉर्मूला जो वैल्यूज दिए हुए हैं, जस्ट यूज दैट वन एंड अप्लाई द फॉर्मूलाज। अभी देखो यहाँ से v स्क्वायर का v का वैल्यू हो गया 12 का स्क्वायर इंटू टाइम हमारा 300 सेकेंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू जो कितना है 10 ओम। अच्छा, एवरीथिंग इज गिवन इन एसआई यूनिट, तो हमारा आंसर भी जो है एसआई यूनिट में यानी कि जूल में निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको अगर आगे फर्दर सॉल्व कर दें तो आई गेट 144, बेटर आई कीप इट लाइक दिस वन, एंड इनटू 300 डिवाइडेड बाय 10, ये इधर गया 144 इंटू 3 मल्टीप्लाइड कितना रहा, 4 3 12, 1 4 3 12, 113, 1 432 या जूल। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चेक कर लो, चेक कर लो। नहीं समझ आया, गो बैक टू क्वेश्चन अगेन, ट्राई टू सी द सॉल्यूशन। ठीक है, अगर समझ आ गया देन वी आर क्विकली मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, एक मिनट कर देता है भाई, बड़ा कर देता है ये। ओके, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आगे ट्राई इट मैं करता हूँ, फिर पॉज द वीडियो, ट्राई इट। ओके, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। ओके, नाउ सी इन दिस क्वेश्चन व्हाट ऑल थिंग्स आर, सी सबसे पहले चीज व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन, जो भी चीजें दी हुई है पहले उसको लिख लेने का। ठीक है, तो इसमें पहली बात तो वर्क ही दिया हुआ,
ठीक है, हीट अमाउंट जो हीट है यही प्रोड्यूस हो रहा है 100 जूल, ये दिया हुआ ईच सेकेंड। ओके, टाइम कितना है देख, ईच सेकेंड मतलब टाइम जो है 1 सेकेंड दिया इन अ 4 ओम रेजिस्टर्स, आर का वैल्यू दिया हुआ है 4 ओम दिया हुआ है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, वी निकालना है। ठीक है, वी निकालना। अच्छा, वी नो दैट जो हमारा हीट आता है वो होता है वी इंटू क्यू। ठीक है। अच्छा, अपने पास क्या क्या दिया हुआ, वी हमें निकालना है, एच दिया हुआ और क्यू नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया हुआ, तो क्यू कैसे निकाल सकते हैं? या फिर बेटर वी यूज आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि टी है आर, हाँ वो यूज कर लेते हैं। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं, आई स्क्वायर आर टी। बट इसमें वी नहीं आएगा, वी यूज करना है। अच्छा, लेट अस चेंज, v इंटू क्यू कर दें, v को v रहने दे, q इक्वल्स टू आई टी कर दें। ठीक है, टाइम अपने पास है, आई नहीं है बट आर है, तो आई को हम वी बाई आर लिख दे, वी इंटू आई को वी बाई आर लिख देते हैं, इंटू टाइम हो गया। अभी यहाँ से लिख सकते हैं वी स्क्वायर टी बाई आर इज इक्वल्स टू एच। ठीक है, फिर से वही सेम एक्सप्रेशन आ गया। तो यहाँ से v को एक साइड रख देंगे एंड आई कैन राइट फ्रॉम हियर वी स्क्वायर इक्वल्स टू ये एच आर डिवाइडेड बाय टी। अभी देखो h दिया हुआ है, r दिया हुआ है, t दिया हुआ है, आ गया। देखो मेन यही है, पहले तुम्हें ये सॉल्व करनी आना चाहिए। ठीक है, नहीं समझ में आया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, आराम से देखने का। ठीक है, आराम से इजिली। देखो फिर से बता दो, देखो क्या किया इस वाले में, वी नो दैट एच इज इक्वल टू वी क्यू। बेटर है ना, हर बार जो है ना यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, अभी v का तो मेरे को फाइंड ही करना है, क्यू नहीं है मेरे पास और ना ही मेरे को उसकी नीड है, तो q को मैंने चेंज किया, q इज इक्वल टू आई टी। फॉर्मूलाज अगेन आई एम सेइंग ऑन द टिप हमेशा होना चाहिए, q इज इक्वल टू आई टी। अच्छा, अभी अपने पास t तो है बट आई नहीं है, तो आई को मैंने फिर से चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ विच इज v बाय आर। अब इसको सॉल्व किया, देन आई गेट v स्क्वायर टी बाय आर। तो यहाँ से h का ये आ गया, अभी v को मेरे को v फाइंड करना है, तो v स्क्वायर मैंने एक साइड रख दिया, यहाँ से आ गया h और मल्टीप्लाई विथ r, और ये t गया नीचे। अभी इसमें वैल्यूज पुट कर दो, देख लो आ जाएगा आंसर। देखो h कितने आया अपने पास, 100 है ना, सो 100 इंटू r का क्या वैल्यू है, 4। 4 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 1। तो क्लियरली यहाँ से वी स्क्वायर 400 आ रहा है, तो v का वैल्यू 20। ठीक है, 20 वोल्ट आ गया। दिस इज आवर आंसर। समझ आया क्या किया? ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। कुछ ही एक दो न्यूमेरिकल्स ही यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट न्यूमेरिकल्स अच्छे आएंगे। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी पे नहीं आएगा। ठीक है, बट सर फिर एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी बताया क्यों? क्योंकि दैट इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो डेरिवेशंस में 2-3 नंबर में कभी कभी पूछ लेते हैं। दैट्स व्हाई यू मस्ट रिमेंबर दैट। क्लियर? ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द, ये चीज तुम खुद बताओगे, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एप्लीकेशंस मतलब डेली लाइफ में उनका क्या यूज है। पहला चीज तो इलेक्ट्रिक हीटर्स एंड गीजर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर्स एंड गीजर्स में यूज हो गया। सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वन खुद से बताओ, सोचो, थिंक। इलेक्ट्रिक आयरन, ओवन, केटल, टोस्टर, ये सारी चीजें। बल्ब हो गया। ओके, और वो देखियो इन द इलेक्ट्रिक शॉप वो सोल्डिंग करने के लिए एक मशीन होता है, दैट आल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, एक दो चीज जो है जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम्स में अच्छे क्वेश्चंस में आ जाते हैं, द वर्किंग ऑफ फ्यूज। फ्यूज, अच्छा फ्यूज जो होता है ना, दैट आल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट पे वो वर्क करता है। अच्छा, फ्यूज एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज फ्यूज और इसका काम क्या होता है? फ्यूज इज द is a small electrical device which is connected in live wire। अच्छा, जो वायर होता है अपने पास, 3 वायर होता है। ठीक है, एक होता है अपने पास लाइव वायर, दूसरा क्या होता है न्यूट्रल वायर, और तीसरा क्या होता है अपने पास अर्थिंग, अर्थिंग वायर। तो जो करंट फ्लो होता है वो लाइव वायर से होता है, तो लाइव वायर में ना ये बीच में, उसके बीच में ये फ्यूज जो है लगाया जाता है। फ्यूज क्या है, इट इज अ डिवाइस जिसका कि बहुत एक कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, सो दैट कि अगर मान लो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट सडनली फ्लो कर जाए वायर में। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट हाई करंट,
वो हीटिंग इफेक्ट को यूज करेगा, हीट हो जाएगा और हीट करके वो मेल्ट हो जाएगा। व्हेन इट मेल्ट्स, यहाँ से वो टूट जाएगा। ठीक है, ये टूट जाएगा। व्हेन इट ब्रेक्स डाउन, तो आफ्टर दैट देयर इज नो यूज। मतलब बेसिकली फ्यूज का काम क्या है? फ्यूज जो है मुश्किल से 25-30 रुपए में आता है, 20-30 रुपीज, नॉट मोर देन दैट। बट इट प्रोटेक्ट्स अ appliance which cost in lakhs, thousands in lakhs. What it do, if somehow by overloading or by any case happens, like more amount of current comes in the wire suddenly. So if the fuse is not there, that current will go directly to the electrical appliance. Okay, and that will damage the electrical appliance. But if in between electrical fuse is there, so what it will do, it will use that electric current to heat up, and when it heat up more, it melts. It melting point, the melting points of fuse are very less. Okay, question also comes, why the melting point of fuse is very less? Because when the melting point is very less, because when it heat up more, it suddenly melts and break down the circuit. तो सर्किट अगर टूट गया, बस देयर इज नो यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देन। ठीक है, तो आगे जो है, आगे जो अप्लायंस लगा हुआ है, दैट इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, दैट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये हो गया पहला चीज। दूसरा एक जो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो पूछते हैं, जो हमारा बल्ब, अच्छा अभी जो एलईडी आ गया, ये सारे बल्ब में तो दूसरी चीज है। पहले के टाइम पे जो बल्ब आता था जिसमें, ठीक है, ऐसे ये, इसको कर दो भाई ये सील। अच्छा, इसमें जो होता है ना, हाँ ये ठीक ठाक थोड़ा सा बल्ब जैसा लग रहा है। अच्छा, ये जो होता है ना, इसके अंदर जो है नियॉन गैस और ये इनर्ट गैसेस डाले रहते हैं ताकि ये जो है ऑक्सीडाइज ना करे। ठीक है, अच्छा व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू इट, तो ये जो वायर होता है ना, मोस्टली इट इज मेड ऑफ निक्रोम, ये सारे मटेरियल रहते हैं। अच्छा, निक्रोम से ही क्यों बने रहते हैं मैं बता दूं, क्योंकि इन सब का जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बहुत हाई। सच दैट कि अगर ये यहाँ से अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बहुत हाई, साथ ही साथ इनका रेजिस्टेंस भी हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई है तो मतलब ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे, और उसी हीटिंग इफेक्ट से ये ग्लो करते हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ द लाइट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो ये जब ग्लो करेंगे और इनका मेल्टिंग पॉइंट एज्यूम कि अगर बहुत कम है, देन दे विल मेल्ट। कोई फायदा ही नहीं है, तुम इलेक्ट्रिक बल्ब स्टार्ट करोगे, वो मेल्ट होके टूट जाएगा, तो फिर कोई यूज नहीं ना। सो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, सच दैट इट कैन रेजिस्ट मोर अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, एंड दे कैन कीप ऑन ग्लोइंग। सो their melting point is high and resistance is also very high। ठीक है, सेम वायर्स जो होता है यूज इन द इलेक्ट्रिक हीटर एंड ऑल। ठीक है, उन सब में भी ये सब वायर यूज होता है, विच हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, ये वायर्स का, इन वायर्स का एक और खासियत होता है, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज इजिली। केमिस्ट्री का थोड़ा टर्म है ऑक्सीडाइज, मतलब कि जल्दी से वो रिएक्ट नहीं करता। रिएक्ट कर जाए तो ये रिएक्ट करके ये टूटने की संभावना रहती है, टूट जाएगी। ठीक है, सो दे डू नॉट रिएक्ट, और बेटर वे वी कैन से दे डू नॉट ऑक्सीडाइज। ओके, अच्छा इसी पे बेस्ड देखो, सेम क्वेश्चन भी है मेरे पास भी, इसका आंसर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है शायद। देखिए सेम क्वेश्चन देखो, सी है। Okay, see here. Why are the alloys like nichrome used for making heating devices such as electric heater, coils and toaster? वही चीज, क्योंकि उनका पहली बात तो दो तीन रीजंस जो दोगे, बिकॉज वेरी हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट उनका बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई देयर वायर्स लाइक निक्रोम वायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग डिवाइसेस। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, ये क्वेश्चन भी मैंने बता दिया। अगर मैं पूछूं, why are the fuse wire made of wire which has low melting point? See, like this one. Yeah, this one. Why the fuse wire made of a material with low melting point? ये भी बता दिया, क्योंकि if they are having very high melting point, so they will allow the current to pass through it, then there's no use of it। फ्यूज का काम ही होता है, इट्स द सर्किट है ये फ्यूज। अच्छा, ये ऐसे आई शुड नॉट ड्रॉ इट लाइक दिस, फ्यूज आर लाइक दिस वन।
ये इसमें कनेक्टेड रहता है, एंड व्हेन द हाई अमाउंट ऑफ करंट पासेस थ्रू इट, ये मेल्ट हो जाता है, एंड व्हेन इट मेल्ट्स इट ब्रेक्स द सर्किट. Okay, and thus it, what does it do? It protects the electrical equipment from being damaged. ठीक है. So that's why the fuse wire are made of a wire which has low melting point. ठीक है. क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ? अच्छा, अगर ये क्लियर हुआ तो एक दो क्वेश्चन और है, लास्ट के क्वेश्चन हम कर लेते हैं, देन विल वाइंड इट अप दिस लेक्चर. एक और लास्ट टॉपिक जो बच रहा है इस चैप्टर का, विच इज द पावर. ठीक है. पावर वैसा कुछ ज्यादा खतरनाक टॉपिक है नहीं, हमने वर्क पर लिया. हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग क्या है, हीट क्या है, वर्क है, और पावर क्या है, वर्क पर यूनिट टाइम. द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. ठीक है. तो पावर का एक और लेक्चर आने वाला है जो हम करेंगे, एंड देन आफ्टर वर्क इज डन. ओके, ठीक है. ओके, स्टार्ट करते हैं. Now, try this question. Question क्या कह रहा है? Two conducting wires of same material and of equal length and equal diameter are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced. ठीक है. अच्छा, two conducting wires of same material and equal length and equal diameter are first connected in series. ठीक है. अच्छा, मान लेते हैं कि दो वायर है जिसका कि रेजिस्टेंस R और R है. ठीक है. अच्छा, जब इसको सीरीज में डालेंगे तो टोटल जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, हम बात कर रहे हैं सीरीज की. ठीक है. तो आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा मेरे पास 2R. ठीक है. करंट एंड ऑल दोस थिंग्स हमारे पास सेम है, तो हमारे पास एच जो आ जाएगा, एच क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी. अच्छा, आर अपने पास क्या है, आर का वैल्यू डाल देता हूँ, एच स्क्वायर आर टी होना चाहिए, और आर जो है मेरे पास कितना है, आई स्क्वायर 2R इंटू टी. ठीक है. बेटर आई राइट इट लाइक दिस, टाइम टी. तो लेट्स से कि ये H1 है, H1 का एक्सप्रेशन आ गया. अच्छा, व्हेन आई कनेक्ट इन पैरेलल, पैरेलल में जब हम कनेक्ट करें तो 1/R इक्विवेलेंट डायरेक्टली मैं कर देता हूँ. आर इक्विवेलेंट क्या था, रिमेंबर, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. मतलब कि R इंटू R डिवाइडेड बाय R प्लस R इज टू R. ठीक है. सो R बाय 2, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू जो है अपने पास आ गया R बाय 2. सो H2 यहाँ से निकालने की कोशिश करो तो आई कैन राइट आई स्क्वायर, आर का वैल्यू, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू इज R बाय 2 इंटू टाइम इज T. ठीक है. ये आ गया मेरा पास एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 1, 1 1 1 1 1. ठीक है. अभी निकालने का रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल. सीरीज इज टू पैरेलल, मतलब कि सीरीज इज टू पैरेलल में क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर 2R टाइम डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर R बाई 2 इंटू टाइम. ठीक है. यहाँ से T गया, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर गया, 2R डिवाइडेड बाय R इंटू 2. सो R से R गया, 4:1. 4:1 आंसर है क्या, ऑप्शन डी. क्लियर, इजी. बस ये वैल्यू निकालना था, आर इक्विवेलेंट का कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में. ठीक है. एक लास्ट क्वेश्चन जो ग्राफ का हम ले रहे हैं, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ग्राफ का कर लेते हैं, देन द थिंग इज डन. Okay, see this one. In this question, what does it say? Try कर लो, pause करके try कर लो, then I start. Okay, now in this question, what does it say? A VI graph is given for two wires A and B are shown in figure. Both of them are connected in series to a battery. Which of them will produce more heat per unit time? अच्छा, remember the expression of heat, it says that H is equals to I square RT. अच्छा, यहाँ से एक ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा किसी इलेक्ट्रिक वायर में बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आई इलेक्ट्रिक करंट, and this heat is directly proportional to R, and this heat is directly proportional to time also. इस वे में भी हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट को हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. सो फ्रॉम हियर आई कैन क्लियरली सी दैट H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब कि जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा. अच्छा, V और I ग्राफ का जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, रिमेंबर अगर याद हो तो ये V बाय I ये डायरेक्टली R का वैल्यू देता है. तो स्लोप अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा.
यहाँ से क्लियरली ये दिख रहा है कि इस वाले का रेजिस्टेंस जो होगा इस वाले से ज्यादा होगा, इस वाले से ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है, इफ कीपिंग एवरी अदर एस्पेक्ट सेम, so if resistance का value is more, then the heat produced will be more. Okay, so clearly I can say that wire A will produce more heat than wire B. ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक लास्ट चीज जो एक टर्म आता है करके मैं बताते जाता हूँ, ओवरलोडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग वैसे पहले सुना होगा, ठीक है, नॉट अ वेरी बिग टर्म। Overloading is a it is a situation when there is a very high amount of electric current started flowing in the live wire. ठीक है, so that is called as the overloading, case of overloading। अच्छा, इस चीज को ऐसे अगर समझ में सकते हैं, मे बी लास्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा होम सर्किट डायग्राम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। so in circuit, if you connect a device, electric equipment or device which is having more requirement of electricity, high electric consumption, okay, but the wire you did not provide it accordingly, okay, so it will try to consume more amount of electric current, and hence more amount of electric current will pass through it। so this situation is called as the overloading। ठीक है, डिफाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं, थिंक। Overloading, basically see, overloading in an electric circuit occurs when too many electrical appliances, एक तो या तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा दो या फिर एक ऐसा लगा दो जिसके पास बहुत ज्यादा कंजम्पशन करने की क्षमता है, ability to consume more amount of electric current। so electric overloading is an electric circuit occurs when too many electric appliances are connected to a single circuit or when the circuit carries more current than its safe limit। मतलब ये जो सर्किट है, ये वायर है, ये जितना इसकी जितनी क्षमता है उससे ज्यादा ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने लगे तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अच्छा, आई गेस इन द लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने शॉर्ट सर्किट के बारे में बता दिया था। शॉर्ट सर्किट बेसिकली क्या होता है कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो होता है, अगर इफ दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर बाय एनी मिस्टेक और कोई कुछ बिकॉज ऑफ एनी थिंग, देन दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट। मैंने दिखाया भी था एक्चुअली शॉर्ट सर्किट होता कैसे बाय यूजिंग दैट एनिमेशन। ठीक है, रिमेंबर। तो ये क्लियर हुआ, अगर ये क्लियर हुआ देन या वी आर गुड टू गो। आई होप चीजें क्लियर रही होंगी आज की। and yeah, that's my back new setup। I tried doing something different today। okay, so yeah, we can wind it up today here। In the next lecture we will try to see, we will do the lecture of power, and then this chapter is over। after that, quickly, in the last chapter, in the description I'll give you the notes is properly everything in the typed notes are there, so I'll give you। उसके बाद आफ्टर दैट मे बी 1-2 lectures more we will do solely based upon the previous year questions, we will solve that। ठीक है, चलो देन, बाय बाय।